ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کے سیاسی ایجنڈے کا اعلی کار بنا ہوا ہے اور چیئرمین نیب ان کی غلامی کر رہے ہیں، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح۔ یہ آج پریس ریلیز 25 ستمبر 2021 کو قومی احتساب بیورو نے جاری کی۔ اس پریس ریلیز کے اندر پریس ریلیز 21 ستمبر 2021 کو جاری کی، نیب لاہور کی طرف سے جاری ہوئی، اور اس کے اوپر بڑا بڑا قومی احتساب بیورو لاہور لکھا ہوا ہے۔ اصل میں یہ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد کی پریس ریلیز ہے جو عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر قومی احتساب بیورو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے جاری کی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران 538 ارب روپے کی ریکوری کی گئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو سب سے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ مطالبہ ہے کہ 538 ارب روپے کی جو ریکوری ہوئی ہے اس کو پبلک کیا جائے، پاکستان کی عوام کو بتایا جائے، اور اس ریکوری کے اوپر نیب کے کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، نیب کے فرنٹ مین ایجنٹس اور ٹاؤٹس جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں برجمان ہیں، انہوں نے اس میں سے کتنے پیسے کھائے ہیں۔ ان 538 ارب روپے کی تفصیل پاکستان کی عوام کے سامنے۔ یہ اس قومی احتساب بیورو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی پریس ریلیز کی 4 لائنوں کا پہلا حصہ ہے۔ جو اصل مقصد تھا اس پریس ریلیز کو ایشو کرنے کا، عمران خان صاحب کے سیاسی ایجنڈے، منفی پروپیگنڈا، بے بنیاد الزامات کی جو ایک تسلسل ہے، نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف، وہ اصل مقصد ہے اس پریس ریلیز کا۔ اس پریس ریلیز کا اصل مقصد، یہ پریس ریلیز نہیں ہے قومی احتساب بیورو کی، اس پریس ریلیز کا اصل مقصد چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کی درخواست ہے۔ یہ پریس ریلیز جو آج جاری کی گئی ہے، میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پریس ریلیز نہیں، یہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کی درخواست ہے، اور وہ اس لیے کہ اس پریس ریلیز کا جو 80% حصہ ہے، جو نواز شریف ہے، جو عمران خان کا سیاسی ایجنڈا ہے، جو جھوٹے بے بنیاد الزامات اور احتساب، سیاسی انتقام، احتساب کے نام کے اوپر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ 35 سال سے زائد عرصہ نواز شریف کو سیاست میں ہو گیا، 1 دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم منتخب سلیکٹڈ نہیں، اس کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے، جس نے ان کی طرح صرف پیسے نہیں کھائے، ڈاکے نہیں ڈالے عوام کی جیبوں پہ، عوام کا آٹا، روٹی، چینی، دوائی، گیس، بجلی جو انہوں نے چوری کیا عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈال کر، اس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اس نے اس ملک میں موٹر ویز بنائی، اس نے اس ملک پہ شاہراہیں بنائی، اس نے اس ملک میں ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے 3 سال میں مثال قائم کی۔ اس کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے، اور اس پہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ ان کو نیب عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ فیصلہ جو ججوں کو ان کی ویڈیوز دکھا کے بلیک میل کر کے دلوایا گیا، وہ فیصلہ جو سرینا کے لفافوں میں ججوں کو بھیج کر سنایا گیا، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے نواز شریف کی جائیداد کی ریکوری کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے وہ کیس جو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے،
इस्लाम हाई कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन नहीं कर चुका, उसके ऊपर ये नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन की दरखास्त आई है, जो नैब न्याजी गठजोड़ की गुलामी कर रहे हैं। ये दरखास्त का मकसद ही चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन है। नैब की ये कलाबाजियां, नैब की ये प्रेस रिलीजें 450 अरब आटे की चोरी पे क्यों नहीं आती? नैब की आंखों पर पट्टी और चेयरमैन साहब अंधे हो जाते हैं जब 800 अरब की चीनी चोरी नजर नहीं आती, जब बनी गाला का जमान पाक जो करोड़ों रुपए खर्च करके, जिसके पास जेब में धेला नहीं है, वो करोड़ों रुपए खर्च करके जमान पाक की तामीर करवाता है। वो बनी गाला में अपने महल को, गैर कानूनी महल को कानूनी कराता है। कहां से आए थे पैसे, आज तक जवाब नहीं हुआ। साकिब निसार साहब ने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए इनको क्लीन चिट दी, और वो भी खुली खुलेगी इंशाअल्लाह एक दिन। चेयरमैन नैब की आंखों के ऊपर पट्टी बन जाती है जब 400 अरब की LNG चोरी नजर नहीं आती, हेलीकॉप्टर केस नजर नहीं आता, बिलियन ट्री सुनामी नजर नहीं आता, BRT पेशावर के 122 अरब के खड्डे नजर नहीं आते, रिंग रोड नजर नहीं आता, और तोशा खाना रेफरेंस दायर होता है नवाज शरीफ पे। कल इमरान साहब कहते हैं कि मैं कुछ डिक्लेयर नहीं करूंगा जो मुझे तोहफे मिले हैं, क्योंकि वो तोहफे खा चुके हैं। नैब की कलाबाजियां उस वक्त नहीं होती, क्योंकि ये एक्सटेंशन की दरखास्त हमें ब्लैकमेल करके नहीं दी जा सकती। और उस वक्त आज मुल्क के अंदर नैब चेयरमैन की आंखों के ऊपर पट्टी बंदी होती है, आज मुल्क के अंदर FIR हो, आज मुल्क के अंदर जायदाद का इंतकाल हो, आज मुल्क के अंदर तबादले हो सरकारी, आज मुल्क के अंदर वजीरों की कुर्सियां हो, आज मुल्क के अंदर हस्पताल की पर्ची हो, आज मुल्क के अंदर बच्चों का दाखला हो, सब बिकाऊ माल बन चुका है। वो नैब चेयरमैन को नजर नहीं आता। नैब चेयरमैन को नजर वो आता है फैसला, ये गैर कानूनी प्रेस रिलीज है, लेकिन ये प्रेस रिलीज चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरखास्त है। और उसके बाद वो चोरी, वो डाका जो मुल्क में 3 साल से डर रहा है, जिसमें तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सबसे पहले ये जो 538 अरब है उसकी दरखास्त पब्लिक की जाए। दूसरा जो ब्रॉड शीट है जिसमें इमरान खान साहब ने नैब को अपना एजेंट बनाया, फ्रंटमैन बनाया और टाउट बनाया, जिसमें हिस्सेदार कागज लहरा लहरा के शहबाज शरीफ के खिलाफ शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। वो सब हिस्सेदार वो वजीर आजम हाउस में बैठे हैं, जिसमें 25 करोड़ रुपया अदायगी की गई, जिसमें 9 अरब की अदायगी की गई, जिसके अंदर 30 करोड़ की फीस की, लीगल फीस की अभी भी मकरूज है 2001 से लेकर आज तक। वो तमाम रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, ब्रॉड शीट का सब रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। और इसी तरह की इक्तिसाब ब्यूरो पाकिस्तान की प्रेस रिलीज जारी की जाए, प्रेस रिलीज जारी की जाए 850 अरब की चीनी चोरी की, प्रेस रिलीज जारी की जाए 400 अरब के आटे चोरी की, प्रेस रिलीज इशू की जाए बिलियन ट्री सुनामी की, हेलीकॉप्टर केस की, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की, 600 अरब की LNG की, करोड़ों रुपए की जमान पाक की तामीर की, बनी गाला के गैर कानूनी महल की, तोशा खाना का रेफरेंस दायर किया जाए जिसको डिक्लेयर करने से इनकार किया गया है, 122 अरब के पेशावर मेट्रो की, और उसके बाद ये गुलामी की जाए। नवाज शरीफ 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम है पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान की आवाम को सस्ता आटा, सस्ती चीनी, रोजगार, सीपैक, बिजली, गैस चोरी करते हैं, उसके बाद वजीर का तबादला करते हैं, चोरी करते हैं, उसके बाद वजीर को फारिग करते हैं,
चोरी कराता है इमरान खान और उसके बाद वजीर को इस्तीफा दिलाते हैं। ये तमाशा, कभी ईवीएम का तमाशा, कभी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का तमाशा, क्योंकि असल तमाशा इन चोरियों को रोकने और इन चोरियों को छुपाने के लिए हो रहा है। ये तमाशा इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम इन लोगों की गिरबान होंगे, इन लोगों के हाथ होंगे जहां हथकड़ियां लगेंगी, जिन्होंने अवाम के पास से रोटी छीन ली, दवाई छीन ली, आटा छीन लिया, बिजली गैस के बिलों के पैसे देने के लिए अवाम के पास पैसे नहीं, और कहते हैं ओवर बिलिंग हो गई, एडवांस टैक्स लगा देते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। और फिर किस मुंह से आप ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं, ये दरखास्त देते हैं कि मेरी एक्सटेंशन की जाए, ईवीएम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करते हैं, आइन के ऊपर हमला करते हैं। पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म होता है, धमकी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि मकसद धांधली है, मकसद पॉलिटिकल कंसेंसस और इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है। 2017 में इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ था। ये सब काले कानून, ये सब अवाम की जेबों के ऊपर डाके, और ये सब नैब न्याजी गठजोड़ की जो मिली भगत है, ये वो करने के लिए इश्यूज रेज किए जाते हैं। और अब ये तमाशा नहीं चलेगा। आपको किसने हक दिया है, नैब को किस कानून के तहत ये हक है कि वो इस तरह के मीडिया ट्रायल्स के लिए प्रेस रिलीजेस इशू करे? कानून में किस जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि जो फैसला अभी फाइनलिटी अटेन नहीं करता, जो फैसले जजों की वीडियोस दिखाकर कराए जाते हैं, जो सरीना के लिफाफों में लाए जाते हैं, वो फैसले के ऊपर आप प्रेस रिलीजेस इशू करें? ये किसी कानून में गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए होता है, और मीडिया ट्रायल का भी मकसद फेल, जीरो मकसद है, क्योंकि आज ये मालूम है पाकिस्तान की आवाम को, आपने उनको भेड़ और बकरियां समझा हुआ है आवाम को। आवाम सब जानती है, आवाम सब समझती है कि असल में इलेक्शन चोर, आटा चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, एलएनजी चोर, गैस बिजली चोर मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। और इमरान साहब के हुक्म के ऊपर ये तमाम एटीएम माफिया, बिजली गैस माफिया, आटा चीनी माफिया चोरी करता है, डाके डालता है। और दिन थोड़े हैं, इंशाल्लाह दिन थोड़े हैं इन लोगों के, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सब जान चुकी है। और एक दफ़ा फिर मैं नैब चेयरमैन को कहना चाहती हूँ, अगर किसी किस्म की शर्म बाकी है, क्योंकि जिस किस्म का सियासी इंतकाम नैब के कानून को इस्तेमाल करके इमरान खान की गुलामी कर नैब के इदारे को इमरान खान के हुक्म के ऊपर मुतनाज़ा बनाकर, एहतसाब को मुतनाज़ा बनाकर, पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई एहतसाब के आगे पेश हुआ है तो खुद खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट को, उस केस में जहां उसका नाम नहीं था, उसका नाम नवाज शरीफ है, अपनी बेटी मरियम नवाज का हाथ पकड़ के था कि एक धेले की करप्शन अगर साबित हुई तो उसने खुद पेश किया आवाम के सामने अपने आप को। और यहाँ रोज आटा चोरी करते हैं, रोज चीनी चोरी करते हैं, आवाम की जेबों पर डाके डालते हैं। और नैब चेयरमैन और नैब उस वक्त इमरान साहब के हुक्म के ऊपर अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेता है। और आखिर में ये प्रेस रिलीज, ये तमाशे बंद होने चाहिए। कोर्ट्स मौजूद हैं जहां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के केसों से पिछले दरवाजे से नैब भाग जाती है, सबूत पेश नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, मुस्लिम लीग पूरी के ऊपर इन्होंने केसेस बनाए और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुर्खरू किया। वो केसेस पढ़े, पाकिस्तान की आवाम वो तमाम फैसले जान चुकी है और इन तमाम हरकतों से बाज आएं। बहुत शुक्रिया।